یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. آج جمعہ ہے اور دسمبر کی 19 تاریخ. ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. پاکستان کا داعش خراسان کے ترجمان کی گرفتاری کا دعویٰ. یورپی یونین کا یوکرین کو روسی اثاثے استعمال کیے بغیر 90 ارب یورو قرض دینے پر اتفاق. Today we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. بنگلہ دیش کے انڈیا مخالف نوجوان رہنما عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے. پاکستانی صدر کی منظوری سے جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈی نوٹیفائی. تجزیہ کار بولا، آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار آ گیا. کسی نے جوانی میں کوئی غلطی کی ہے، کسی کا جوانی میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر رہا ہے، کوئی جوانی میں کسی سے کچھ ہوا ہے، بعد میں وہ جج بن گیا ہے، ایجنسیاں ڈھونڈ لیں گی پائن اس نے جوانی میں یہ کیا تھا، پھاڑ لو اور پھر پھاڑ لو اور ریٹ سے باہر نکال دو. یہ ایک راستہ تو کھل گیا ہے. بھارت میں بیوی کے قتل کا سزا یافتہ مجرم 9 سال بعد بسکٹ کے پیکٹ سے گرفتار. چین میں فلائنگ کاروں کی بڑے پیمانے پر تیاری. جانیے انڈیا کے جنگلات کے قریب گاؤں میں شیر کے حملوں سے بچنے کا انوکھا طریقہ کیا ہے. اس علاقے میں شیر دن رات گھومتے رہتے ہیں. یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حملہ کب ہو جائے. ہر سمت شیر کا خوف چھایا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں 4 خواتین آگے بڑھی ہیں تاکہ اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کر سکیں. یہ بھی جانیے کہ دیوسائی نیشنل پارک کی حدود میں موسمی ہوٹلوں اور تجارتی سرگرمیوں پر پابندی کیوں عائد کی گئی. جلا وطنی کے بعد فاقہ کشی دیکھنے والے شہزادے. جانیے خلافت عثمانیہ کے جانشین اب کہاں ہیں. اور یہ بھی جانیے کہ ترکی کے بن پائلٹ طیارے F-16 کو کیسے مار گرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر خبریں اور موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. پاکستان نے داعش خراسان یعنی ISKP کے ترجمان اور میڈیا سربراہ سلطان عزیز اعظم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق سلطان عزیز اعظم کو مئی 2025 میں پاکستان میں داخل ہوتے وقت گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد داعش خراسان کی میڈیا اور پروپیگنڈا سرگرمیاں معطل ہو گئی تھیں. پاکستان ٹیلی ویژن اور سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق سلطان عزیز اعظم کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے اور وہ داعش خراسان کے مرکزی میڈیا پلیٹ فارم العزائم کے سربراہ رہ چکے ہیں. انہیں نومبر 2021 میں امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا. ذرائع کے مطابق گرفتاری کئی ماہ قبل عمل میں آئی تھی، تاہم اس کا اعلان اب کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی تجزیاتی سپورٹ اور پابندیوں کی مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں بھی اس گرفتاری کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اقدامات سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا ہے اور کئی دہشت گرد منصوبے ناکام بنائے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق سلطان عزیز اعظم نے داعش خراسان کے لیے پرتشدد نظریات کی تشہیر، حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے اور بھرتی مہم میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ کابل ایئرپورٹ خودکش حملے سمیت متعدد بڑے واقعات کی ذمہ داری بھی ان کے بیانات کے ذریعے قبول کی گئی تھی. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والی سیاسی تنظیم کے نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ملک میں شدید ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں. مختلف شہروں خصوصاً دارالحکومت ڈھاکہ میں پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں، جبکہ عبوری حکومت نے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. 32 سالہ شریف عثمان ہادی کو گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے. عینی شاہدین کے مطابق چہرہ ڈھانپے نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کی. شدید زخمی حالت میں انہیں پہلے ڈھاکہ کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور بعد ازاں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا. تاہم وہ جمعرات کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. یہ واقعہ عبوری حکومت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے محض ایک دن بعد پیش آیا ہے.
उस्मान हादी ने ऐलान कर रखा था कि वो आइंदा इंतखाबात में एक खुद मुख्तार उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, जिसके बायस उनके कत्ल ने मुल्क की सियासत में कई सवालात को जन्म दिया है। हादी की मौत की खबर सामने आते ही उनके सैकड़ों हामी सड़कों पर निकल आए। ढाका में मुजाहिरीन ने मारूफ अखबार द डेली स्टार समेत एक और अखबार के दफ्तर पर धावा बोला और एक इमारत को आग लगा दी। BBC बंगला से बात करते हुए एक मुकामी पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि एहतजाज में सैकड़ों अफराद शरीक थे। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इमारत में मौजूद साफियों को बाहिफाजत निकाल लिया। মিছিল সহ আগুন নেওয়া उस्मान हादी इनकलाब मांचा नामी तुलबा तहरीक के सरगर्म रहनुमा थे और बांग्लादेश में इंडिया के सख्त नाकदीन में शुमार होते थे। वो ढाका यूनिवर्सिटी के शोबा पॉलिटिकल साइंस से फारिगुल तहसील थे और एक निजी यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। इससे कबल उन्होंने एक मदरसे से दीनी तालीम भी हासिल की थी। गुज़िश्ता साल शेख हसीना के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान उस्मान हादी नुमाया तौर पर सामने आए। उन्होंने अवामी लीग पर शदीद तनकीद की और शेख मुजीबुर रहमान के धान मंडी में वाक़े तारीखी घर के बाहर होने वाले एहतजाज में भी शिरकत की। हादी ने अपनी हलाकत से कबल सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्हें कम अज कम 30 मुकामी और गैर मुल्की नंबर से जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिनमें उनके घर को नजर आतिश करने और अहल खाना को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी शामिल थी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो अबूरी हुकूमत के सरबराह भी हैं, ने उस्मान हादी की मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि जमहूरियत की जानिब सफ़र को खौफ, तशद्दुद या खून रेजी के जरिए नहीं रोका जा सकता। আমরা শহীদ শরীফ উসমান হাদির আদর্শ ও ত্যাগকে শক্তিতে পরিণত করি, ধৈর্য ধারণ করি, অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিই এবং যে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকি। डॉक्टर यूनुस के मुताबिक ये एक सोचा समझा हमला था जिसका मकसद इंतखाबात के अमल को सबूताज करना हो सकता है। हुकूमत का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और अब तक कई अफराद को हिरासत में भी लिया जा चुका है। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद गुज़िश्ता साल मुल्क गिर एहतजाज के बाद इंडिया फरार हो गई थी, जिसके साथ ही उनका 15 साला इक़्तिदार ख़त्म हुआ। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल से तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बायस रवां बरस नवंबर में शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने रूस के मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर इतफाक न होने के बाद यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने पर मुआहिदा कर लिया है। ये मुआहिदा, जिसके बारे में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि इससे अगले 2 बरस तक यूक्रेन की फौजी और मुआशी ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी। ब्रसल्स में होने वाले सरबराही इजलास में एक दिन से ज़ायद तवील मुज़ाकरात के बाद ये मुआहिदा तय पाया है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह एंटोनियो कोस्टा ने मुआहिदे का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि हमने अज़म किया और कर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कर्ज यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका बजट की ज़मानत पर फराहम किया जाएगा। Today we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुतालबा किया था कि 200 अरब यूरो के मुंजमद रूसी असासे इस्तेमाल किए जाएं। ताहम बेल्जियम, जहां रूस के सबसे ज़्यादा असासे मौजूद हैं, की जानिब से ज़मानतों के मुतालबे पर दीगर ममालिक ऐसा करने पर मुत्तफिक नहीं हुए। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने खबर रसा इदारे AFP को बताया है कि अमेरिका और रूस के हुकाम इस हफ्ते के आखिर में मियामी में अमन मंसूबे पर मज़ीद बातचीत के लिए मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से मुताल्लिक ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि क्रिमिनल के एलची दमितर मियामी में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और अमेरिका के वफूद जुमा और सनीचर को अमेरिका में मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि वाशिंगटन इस बात पर मज़ीद तफसीलात फराहम करे कि वो यूक्रेन को मुस्तकबिल में किसी और हमले से बचाने के लिए कौन सी ज़मानतें दे सकता है।
पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर के मुताबिक ये इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तामील में किया गया है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें काम से रोक दिया था। अदालत ने यह फैसला उनकी LLB की डिग्री के मुबैना तौर पर जाली होने के मामले पर सुनाया और कहा कि आइन के आर्टिकल 175 के तहत वो जज बनने की अहलियत पर पूरा नहीं उतरते थे। अदालती समाअत के दौरान रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि जस्टिस जहांगीरी की कानून की डिग्री मनसूख की जा चुकी है और वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म भी नहीं रहे। अदालत ने करार दिया कि उनकी तैनाती गैर कानूनी थी और वजारत कानून को उन्हें डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया। दूसरी जानब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें मुनसिफाना ट्रायल का हक नहीं दिया गया और किसी जज को जुडिशल वर्क से रोकने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हासिल है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सदर ममलकत की मंजूरी से उनका डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम अंदर की खबर रखने वाले साफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान महज रिट पिटीशन पर किसी जज को फारिग किया जा सकता है और इस तरह की नज़ीर क्या पहले पाकिस्तान में मौजूद है? इस बारे में जो 2 कानूनी राय मौजूद थी, एक राय ये है कि जज के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है और किसी रिट के जरिए किसी जज को फारिग नहीं किया जा सकता। दूसरी राय ये है कि जज को तहफ़्फ़ुज़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जब वो जज बन जाए। अगर उसने जज बनने से पहले कोई गलत काम किया है तो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देख सकती, वो मुल्क के आम कवानीन के तहत ही देखा जाएगा। मसलन अगर कोई जज बनने से पहले उन्होंने कोई भी जुर्म किया है, कोई गलत काम किया है, जज बनने से पहले उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देख सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ उसको देख सकती है जो उन्होंने जज बनने के बाद किया, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार उनके जज बनने के बाद शुरू होता है। इसलिए ये रिट में फैसला होगा। ये 2 कानूनी राय थी। एक राय थी नहीं, जज बन गया, अब जो कुछ भी उसने किया हुआ है, पहले किया है, बाद किया है, देखेगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। बहरहाल ये राय जीत गई है कि जो काम उन्होंने जज बनने से पहले किया है उसको रिट में देखा जाएगा, क्योंकि अब उनको नाअहल एक रिट में करार दे दिया गया है और ये पहली दफा किसी को रिट में नाअहल नहीं करार दिया गया। सैकड़ों मिसालें हैं, चेयरमैन नैब से लेके पीछे PTA के चेयरमैन को भी और बहुत से बड़ी तैनातियों को रिट में ही हाई कोर्ट्स ने नाअहल करार दिया है और ये को वारंटो रिट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन किसी जज के खिलाफ ये को वारंटो रिट का पहला इस्तेमाल है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इससे एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सही। किसी जज का कोई भी पहले का काम ढूंढा जाए और उस पर को वारंटो रिट दायर की जाए और जज फारिग कर दिया जाए। ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया और आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ गया। किसी ने जवानी में कोई गलती की है, किसी का जवानी में किसी लड़की के साथ चक्कर रहा है, कोई जवानी में किसी से कुछ हुआ है, बाद में वो जज बन गया है, एजेंसियां ढूंढ लेंगी, पाया नहीं इसने जवानी में ये किया था, फाड़ लो और फिर फाड़ लो और रेट से बाहर निकाल दो। ये एक रास्ता तो खुल गया है। अब आप ये कहें कि जजेस अपनी जज बनने से पहले की जिंदगी के भी जवाबदेह हो गए हैं। पहले जजेस जो थे जज बनने के बाद समझते थे वो किसी को जवाबदेह नहीं है। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका शुक्रिया। सामिन, पाकिस्तान से अब हम उसके पड़ोसी मुल्क भारत का रुख करते हैं, जहां भारत की रियासत गुजरात में बीवी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाला सुरिंदर वर्मा पैरोल पर रिहाई के बाद फरार हो गया था और 9 साल तक पुलिस से बचता रहा। ताहम एक बिस्किट का पैकेट बिलाखिर उसे कानून के शिकंजे में ले आया। सुरिंदर वर्मा ने 2007 में अपनी बीवी को कत्ल किया था, जिस पर सूरत की सेशन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 2016 में उसे 28 दिन की पैरोल मिली, मगर वो वापस जेल न आया और मफरूर हो गया। इस दौरान उसने दूसरी शादी कर ली, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाया और एक बच्चे का बाप भी बन गया। सूरत पुलिस के मुताबिक खुफिया मालूमात और तवील निगरानी के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इलाके कारवी में उसका सुराग लगाया। सुरेंद्र की रोजाना चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत पुलिस के काम आई।
14 नवंबर को जब वो अपने बेटे के साथ बिस्किट खरीदने आया तो सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को उत्तर प्रदेश से सूरत मुंतकिल करके अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां उसके खिलाफ पैरोल की खिलाफवर्जी और मफरूर रहने के इल्जामात पर कार्रवाई जारी है। चीन में फिजाई सफर के जरिए रोजमर्रा आमदोरफ्त का तस्वर तेजी से हकीकत का रूप धारता जा रहा है, जहां फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। चीनी कंपनियों ने बरकी फ्लाइंग गाड़ियों की बड़े पैमाने पर पैदावार का आगाज कर दिया है, जिसे मुस्तकबिल के शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। चीनी हुकूमत ने कम बुलंदी पर प्रवास करने वाले तैयारों और गाड़ियों को एक अहम उभरती हुई सनत का दर्जा दे दिया है। बीजिंग की जानिब से इस शोबे को मजबूत हुकूमती पॉलिसियों, सरमायाकारी और रेगुलेटरी सहूलतों की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जिसका मकसद शहरी ट्रैफिक के मसाइल कम करना और जदीद ट्रांसपोर्ट हल मुतारिफ कराना है। माहिरीन के मुताबिक फ्लाइंग कारें इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं, जो न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि कम शोर और ज़्यादा महफूज परवाज की सलाहियत रखती हैं। ये गाड़ियाँ अमूदी तौर पर उड़ान भरने और लैंडिंग की सलाहियत भी रखती हैं, जिससे उन्हें गुंजान आबाद शहरों में इस्तेमाल करना मुमकिन हो सकेगा। चीनी कंपनियां इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुकी हैं जो फ्लाइंग कारें तैयार करके बरामद भी कर रही हैं। डेवलपर्स का कहना है कि आने वाले बरसों में ये टेक्नोलॉजी टैक्सी सर्विस, हंगामी तिब्बी इमदाद, लॉजिस्टिक्स और शहरी नकलो हमल के शोबों में नुमाया किरदार अदा करेगी। अगरचे इस नई टेक्नोलॉजी के मुकम्मल निफाज के लिए फ़िज़ाई कवानीन, हिफाजती मयार और अवामी कबूलियत जैसे चैलेंजेस अभी बाकी हैं, ताहम हुकाम और सनतकारों को उम्मीद है कि फ़्लाइंग कारें मुस्तकबिल करीब में जदीद शहरों का लाजमी हिस्सा बन जाएंगी। With the gradual popularization of low-altitude flights, this type of air taxi will become widespread. It will become a daily mode of transportation, a lifestyle to गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने आने वाले सियाहती सीज़न से दियोसाई नेशनल पार्क की हदूद के अंदर किसी भी किस्म के मौसमी होटल या तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेक्रेटरी जंगलात, जंगली हयात व माहौलियात के अहकामात की रोशनी में फैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले सियाहती सीज़न से दियोसाई नेशनल पार्क की हदूद के अंदर किसी भी किस्म का मौसमी होटल और रिहाइश गाह खोलने या दीगर तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। दियोसाई के मैदान सतह समंदर से इंतहाई ऊंचाई पर गिलगित बल्तिस्तान में सकरदू और अस्तोर के इजला के दरमियान वाक़ हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला दियोसाई नेशनल पार्क के कुदरती माहौल, जंगली हयात और हयातियाती तनव्वो के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लिया गया है। दियोसाई की हदूद के अंदर होटलों और तिजारती सरगर्मियों के बाइस माहौलियाती नुकसान, जंगली हयात में खलल और मुतल्लिका कवानीन की खिलाफ वर्जी का खदशा रहता था। डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर की जानब से तमाम मुतल्लिका होटल मालकान और मुंतज़मीन को हिदायत की गई है कि वो आइंदा सीज़न के लिए पार्क की हदूद के अंदर किसी भी किस्म का होटल या नई सहूलत कायम ना करें। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल रवां बरस सितंबर में पाकिस्तान की नामवर गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर दियोसाई नेशनल पार्क में रीछ के हमले के बाद सूबाई हुकूमत ने दियोसाई में रात के वक्त कैंपिंग पर भी पाबंदी लगा दी थी। भारत की रियासत महाराष्ट्र के तादोबा जंगल के करीब वाक़ सीताराम पीठ गांव में शेरों के हमले के खतरे के बाइस बच्चों का रोज़ाना स्कूल जाना एक ख़तरनाक मरहला बन गया है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 4 मुकामी ख़वातीन रोज़ाना तलबा को उनके घरों से बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हैं। ये इकदाम जंगली हयात के बढ़ते हुए खतरात के तनाजुर में किया गया है, जिसे मुकामी अफराद ने सराहा है। महकमा जंगलात ने ऐलान किया है कि इस मॉडल को तादुबा के अतराफ वाक़े 105 देहात तक तोसी देने का मंसूबा बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों और दीगर शहरियों को जंगली जानवरों के मुमकिन हमलों से महफूज रखा जा सके। तफसील भाग्या श्री रावत से। इस इलाके में शेर दिन रात घूमते रहते हैं। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमला कब हो जाए। हर सिमत शेर का खौफ छाया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में 4 खवातीन आगे बढ़ी हैं ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत कर सकें। पहले यहाँ शेर कम थे, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ गई है। इसीलिए शेर दिन रात इलाके में घूमते रहते हैं।
वो किसी भी वक्त निकल सकते हैं, सुबह, दोपहर या शाम। सकाळी, संध्याकाळी, दुपारच्या वेळेला. जब शेर इस दरख्त के करीब आया तो हम चीखने लगे और भागकर वापस गांव पहुंच गए। वहां सब लोग जमा हो गए। शेर मवेशियों पर हमला करते हैं, वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। सकाळी शाळेला पोरं सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी कभार वो शेर को शिकार करते हुए देख लेते हैं। बच्चे चीखना शुरू कर देते हैं, उनके जहनों में खौफ बैठ जाता है। मनामध्ये खूपच अशी भीती राहते. वाघ बघल्यावर जब मैंने शेर को देखा तो एक अलग किस्म का खौफ महसूस हुआ। घर पहुंचकर मैंने अपनी वालदा से कहा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? गांव के तमाम लड़के और लड़कियां बहुत खौफजदा थे। भीत होते आम्ही त्यांना. ये सीताराम पेट गांव है जो रियासत महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में ताडोबा के जंगलात के करीब वाक़ है। महकमा जंगलात की मालूमात के मुताबिक इस गांव के आसपास बाकायदगी से 10 से 12 शेर देखे जाते हैं। पोरांची तयारी होते 9 वाजता. बच्चे सुबह 9 बजे तक स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सबको इकट्ठा करते हैं और 9:30 पर निकलते हैं। इथून काढतो आम्ही. बोलत चालत हम रास्ते में बातें करते हुए साथ साथ चलते हैं और हम चारों खवातीन पूरी तरह चौकस रहती हैं। 2 आगे चलती हैं और 2 पीछे। हम चलते चलते ऊंची आवाजें लगाते हैं। ओरडा करत आम्ही जातो. 1-2 वेळा दिसलाय. हमने 1-2 बार शेर देखे हैं। ये बहुत खौफनाक होता है। उन मौक़ों पर हमने बच्चों को बचाया। हम खवातीन बच्चों को घेर कर उनके साथ चलती हैं। मदत घ्यायचं. हम बस स्टॉप पर उस वक्त तक रहते हैं जब तक बस नहीं आ जाती, जो आमतौर पर 9:45 के करीब आती है। तकरीबन 15 मिनट बाद बस आती है। हम बच्चों को बस में बिठाते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं। गांव से बस स्टॉप तक का फासला तकरीबन 400 मीटर है। ये सुनसान सड़क एक तरफ खेतों और दूसरी तरफ जंगल से घिरी हुई है। शाम के वक्त जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उस वक्त अंधेरा हो जाता है और शेर का खौफ मजीद बढ़ जाता है। मग 6 वाजता गेलं का. जब हम शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे जाते हैं तो पूरी तरह चौकन्ने रहते हैं। कोणीकडून येणार तर नाही. चारही महिला हम चारों खवातीन टॉर्च लेकर चलती हैं और इर्द गिर्द नजर रखती हैं। कभी कभार सांप भी नजर आ जाते हैं। निघते ना ते सायंकाळचे. ये खौफ के शेर किसी भी सम से आ सकता है हमारे जहनों में मुसलसल रहता है। तेव्हा असं भीतीच घेऊन म्हणजे वापसी के वक्त बहुत ज़्यादा खौफ होता है। सिर्फ घर पहुंचने के बाद ही सुकून का सांस लेते हैं। की आता सुटलं, एकदा आलो घरी. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक आदरणीय शुक्ला सर। ये मंसूबा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में आने वाले 105 गांवों में नाफिज किया जाएगा। जो लोग बच्चों को स्कूल ले जाने और वापस लाने में मदद करेंगे उन्हें फी कस माहाना 1000 रुपए दिए जाएंगे। एक टीम को मजमूई तौर पर 4000 रुपए मिलेंगे। काम करने वाली खवातीन को महकमा जंगलात की जानिब से एक इलेक्ट्रिक छड़ी, जैकेट और टॉर्च फराहम की जाएगी। स्टिक आणि त्यांना एक जॅकेट अशा प्रकारे सर्वांना देण्याची तरतूद शुक्ला सरांनी केलेली आहे। इन खवातीन की इस कोशिश को देखते हुए महकमा जंगलात ने कहा है कि यही मॉडल 105 गांवों में नाफिज किया जाएगा। सामीन, उस्मानी सल्तनत जो 600 बरस से जायद अरसे तक एक ही ख़ानदान के ज़ेर इक़्तिदार रही, पहली आलमी जंग में शिकस्त के बाद ज़वाल का शिकार हुई और 1 नवंबर 1922 को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दी गई। इसके बाद 3 मार्च 1924 को खिलाफत भी ख़त्म कर दी गई और उस्मानिया ख़ानदान के 150 से ज़ायद अफराद को तुर्की से जिला वतन कर दिया गया। मौरख़ीन के मुताबिक उस्मानिया सल्तनत का इक़्तिदार कभी किसी दूसरे ख़ानदान को मुंतकिल नहीं हुआ और खिलाफत का निज़ाम वक्त के साथ साथ इर्तिका पजीर रहा, जिसमें सुल्तान और उसके बेटे या भाई इक़्तिदार के हकदार समझे जाते थे।
ताहम जदीद दौर में सल्तनत अवाम से दूर होती गई और यही फासला उसके जवाल की एक बड़ी वजह बना। जिलावतनी के बाद उस्मानिया ख़ानदान यूरोप और मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में बिखर गया। इब्तिदा में उन्हें मुआशी और समाजी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि बाज़ ख़वातीन के लिए ये दौर पहली बार आज़ादी और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी का तजुर्बा साबित हुआ। 1952 में ख़वातीन और 1974 में मर्दों को तुर्की वापस आने की इजाज़त मिली। आज उस्मानिया ख़ानदान के वारिस तुर्की, यूरोप और दीगर ममालिक में एक आम शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ अफराद अपने तारीख़ी विरसे पर फ़ख्र करते हैं, जबकि दीगर किसी लक़ब या सियासी किरदार से ख़ुद को अलग रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक आज उस्मानिया ख़ानदान की कोई सियासी या समाजी हैसियत नहीं, ताहम तारीख़ी और अलामती तौर पर यह ख़ानदान अब भी दुनिया भर में दिलचस्पी का मरकज़ है। सामिन, तुर्की में हरबी सामान तैयार करने वाली एक दिफाई कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा जदीद ड्रोन तैयार कर लिया है जो दुश्मन के उन अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बना सकता है जो बराह रास्त नज़र नहीं आते। कंपनी के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए तुर्की ये संग मील अबूर करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तुर्क दिफाई कंपनी का कहना है कि ये ड्रोन जदीद सेंसर्स, मसनूई ज़हानत और खुद कार निज़ाम से लैस हैं, जिसकी मदद से ये इमारतों, पहाड़ों और दीगर रुकावटों के पीछे मौजूद अहदाफ को भी शिनाख्त करके निशाना बना सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी से जदीद जंगी हिकमत अमली में नुमाया तब्दीली आ सकती है, क्योंकि अब रिवायती दिफाई पोजीशंस भी महफूज नहीं रहीं। तफसील आज के BBC रीड्स में। तहरीर मुनज़्ज़ा अनवार, जबकि पेशकश उमर आफरीदी। इस ड्रोन का नाम है बायरक्तार केज़ेलेमा और ये एक बिना पायलट लड़ाका तैयारा यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो UAV भी कहलाता है। बायकार डिफेंस के मुताबिक ये UAV हद नज़र से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR अहदाफ को तबाह कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी फिजाई जंग में उस वक्त काम आती है जब हदफ इतनी दूर हो के नज़र न आए। उस सूरत में रडार, सेंसर या डेटा लिंक के जरिए हदफ को ट्रैक करके एयर टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया जाता है। तुर्क ज़बान में केज़ेलेमा का मतलब है सुर्ख सेब, जो अलामत है फतह और कामयाबी की। तवक्को की जा रही है कि बगैर पायलट के ये लड़ाका ड्रोन 2026 में तुर्क फौज के हवाले कर दिए जाएंगे। केज़ेलेमा की एक और ख़ासियत यह है कि ये आसानी से रडार पर नज़र नहीं आता और इस पर नस्ब सेंसर इसे दुश्मन तैयारे को दूर से देखने और ट्रैक करने के काबिल बनाते हैं। बायकार डिफेंस के मुताबिक सिनोप के साहिल के करीब एक हालिया टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तुर्क फिजाइया के 2 F-16 लड़ाका तैयारों में से एक पर केज़ेलेमा ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार मुराद की मदद से 30 मील की दूरी पर निशाना बांधा और फिजा से फिजा में मार करने वाला मिसाइल दाग दिया। जाहिर है कि ये सब कुछ मजाजी या गैर हकीकी यानी वर्चुअल माहौल में किया गया। इस कामयाब तजर्बे से ये नतीजा अखज़ किया गया कि अगर हकीकी जंग के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो तुर्की का ये बे पायलट लड़ाका तैयारा दुश्मन के F-16 को फिजा से फिजा में बराह रास्त निशाना बना सकेगा। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि तुर्की के बगैर पायलट लड़ाका तैयारे बहरी जहाज़ों से टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखते हैं और मुस्तकबिल में उनकी रफ्तार आवाज़ से तेज़ यानी सुपरसोनिक की जा सकेगी, जिसके बाद इन्हें मशरकी बहरे रोम और एशियन खित्ते की फ़िज़ाई निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मगर कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक चूँकि ये कामयाबी आजमाइशी हालात में हासिल की गई है, इसलिए हकीकी जंग के दौरान नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है और ये कि अगरचे ये ऑपरेशनल सलाहियत के मुजाहरे की तरफ पहला कदम है, लेकिन असल सलाहियत तक पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। बायकार डिफेंस का कहना है कि बायरक्तार केज़ेलेमा ने 15,000 फुट की बुलंदी पर 1 घंटा 45 मिनट तक परवाज़ की और इसकी टेस्ट फ्लाइट्स का मजमूई दौरानिया 55 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मवासिलात के डायरेक्टर बुरहानुद्दीन दौरान ने कहा कि ये पेशरफ्त, जिसके असरात आइंदा बरसों में मज़ीद वाज़ेह होंगे, फ़िज़ाई जंगों के लिए पांसा पलट यानी गेम चेंजर होगी। टेस्ट के अहम मरहलों के दौरान ये मुशाहिदा भी किया गया कि तैयारे, रडार और मिसाइल के दरमियान तालमेल कितना मौसर है। हदफ F-16 का निशाना बांधने यानी लॉक करने के बाद केज़ेलेमा ने अपने रडार मुराद से हदफ की जगह, रफ्तार और समत वगैरह की मालूमात लेकर बिला रुकावट
پر کے نیچے لگے ہوئے گرگدوان نامی میزائل کو منتقل کی۔ اس تجربے میں یہ مشاہدہ بھی کیا گیا کہ کیزلیما کے پروں کے نیچے نصب میزائلوں کے باوجود اس ان مینڈ ایریل وہیکل کی پرواز یا الیکٹرانک آلات میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ ترک سیکیورٹی ماہر ایری گلچر کا کہنا ہے کہ گرگدوان میزائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے، جو امریکہ کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے درمیانی فاصلے کے جدید میزائل کے برابر ہے، یعنی کیزلیما F-35 طیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق ایئر مارشل عامر مسعود کے مطابق یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا مظاہرہ ترکی نے چین یا کسی بھی مغربی ملک سے پہلے کیا ہے۔ BBC اردو سے بات کرتے ہوئے ایئر مارشل مسعود کا کہنا تھا کہ کیزلیما کو ترکوں نے ایک خود مختار لڑاکا پلیٹ فارم کی طرح ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا سائز F-16 سے بڑا ہے اور اس کے جیٹ انجن سمیت تقریباً پورا نظام ترکی نے از خود تیار کیا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ اور ملٹری ایروسپیس کے ماہر ڈگلس بیری نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجربہ ترکی کی ڈیفنس ایروسپیس انڈسٹری کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی تیار کردہ ٹیکنالوجی ایک خاصی مضبوط دفاعی صنعتی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، مگر ان کے مطابق یہ مصنوعی جنگی ماحول میں کیا گیا تجربہ ہے، اس لیے حقیقی جنگ کے دوران اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ بائیکار کے اس دعوے کو درست نہیں مانتے کہ ترکی یہ صلاحیت حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے۔ ان کے مطابق امریکہ اور چین کسی بھی طرح ترکی سے پیچھے نہیں ہیں، جبکہ یورپ اور آسٹریلیا بھی اسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ ڈگلس کہتے ہیں کہ ہر ملک کی فضائیہ زیادہ سے زیادہ جنگی طیارے چاہتی ہے، مگر بجٹ اور تربیت یافتہ پائلٹوں کی تعداد ہمیشہ محدود ہوتی ہے، اس لیے بغیر پائلٹ سسٹم نہ صرف اس خلا کو پر کرتے ہیں بلکہ خطرہ مول لینے کی گنجائش بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ڈگلس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی پانسا پلٹ یا گیم چینجر نہیں ہوتی۔ ہاں، اس قسم کے بغیر پائلٹ کے پلیٹ فارم اپنی افادیت ضرور ثابت کریں گے، مگر یہ پائلٹ والے جہازوں کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ایئر مارشل مسعود نے بتایا کہ ماضی میں ترک ایوییشن انڈسٹری پاکستان سے بھی پیچھے تھی، مگر گزشتہ 10 برس میں ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی میں حیران کن ترقی کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بغیر پائلٹ طیارہ بنانے والی کمپنی کے طور پر بائیکر نے پاکستان سمیت 37 ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ بھی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔